Once again, a great greetings to you all students. We are here to discuss the second most important kingdom, that is kingdom Protista, right? We are here to enjoy Protista, right? Protista belongs to those organisms which are actually unicellular, but they are eukaryotic. As in Monera, we have previously learned about Monera in previous lecture that Monadans are also unicellular, but they are prokaryotic in nature, students. But here Protista includes those organisms which are unicellular, just like Monera, but the cells are eukaryotic. In previous lecture, we have discussed already what is the difference between prokaryotes and eukaryotes. In 9th class, since from 9th class or from previous classes, you have already get aware about the prokaryotes and eukaryotes, right? But once again I am going to define in one sentence that prokaryotes are those organisms in which cells lack nuclear membrane. That's why, due to absence of nuclear membrane, the genetic material floats inside the cytoplasm, right? And in eukaryotes, that genetic material is this genetic material is actually bordered inside nuclear membrane, well defined nuclear membrane. The definition actually is the presence of nuclear membrane within which the genetic material is concised is called eukaryotes, and those organisms in which nuclear membrane is absent or not present represents prokaryotes, right? Here in this lecture we are going to discuss kingdom Protista, in which organisms are unicellular and eukaryotic. All single-celled eukaryotes are placed under Protista. NCERT says that all single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. अभी तक इस kingdom की boundary well defined नहीं हुई है. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another, right? अगर कोई प्रोटिस्टा आज भी फोटोसिंथेटिक है तो वो साइंस के नज़र में कभी कभार वो प्लांट किंगडम का भी मेंबर माना जा सकता है, और ये आज नकल चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो अलग अलग तरह की जो बातें हैं, अलग अलग तरह की जो डिफिनीशन है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो हमेशा चेंजिंग होते रहती हैं, चेंज होते रहती हैं. तो आगे बढ़ते हैं. इन दिस बुक वी इंक्लूड, अब एनसीईआरटी में क्या इंक्लूड किया है इन्होंने, तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोअन्स, right? All under Protista kingdom. Members of Protista are primarily aquatic. They are mostly found in water, just like Monadans. Monadans जिस तरह से पानी में पाए जाते थे या moist soil में पाए जाते थे, ठीक उसी तरह से Protistants भी aquatic हैं और पानी में ही पाए जाते हैं. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi. क्योंकि इस किंगडम में जो भी मेंबर्स आते हैं वो थोड़े से प्लांट के हैं, थोड़े से एनिमल के हैं, थोड़े से फंगस के हैं, ठीक है? तो ये जो किंगडम है वो उन सब से निकाले हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, ठीक है? नेक्स्ट, बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है? तो प्रोटेस्टेंट में क्या होगा, तो इनके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर होंगे,
एंड यूकैरियोटिक होंगे, तो वो प्रोटिस्टा में आएंगे। सेकंड बात इन्होंने कही है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और अदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वो भी प्रोटिस्टा में आएंगे। यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड membrane bound cell organelles are also present, right? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर भी होंगे एंड यूकैरियोटिक भी होंगे, तो ये मोनेरा किंगडम में आएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। हो गया, यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं। एज फॉर एग्जाम्पल गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। Next, the next point is some have flagella और cilia, यानी कि मोनेरन्स में, खासकर शानोबैक्टीरिया में, मोनेरन्स में तो फ्लैजला था, सीलिया भी था, लेकिन शानोबैक्टीरिया में नहीं था। शानोबैक्टीरिया ऑलवेज lacks flagella, right? They do not have any locomotory organelle, right? Now, but in protista, flagella and cilia are present. तो डिफरेंस क्या होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजला में? तो यूकैरियोटिक फ्लैजला जो होता है स्टूडेंट, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजला जो होगा वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझा दूँ कि यूकैरियोट्स का फ्लैजला बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजला जो होगा वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लेंगे, दोनों के फ्लैजला में बस प्रोटीन का डिफरेंस है, यूकैरियोटिक का ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है उनका फ्लैजला, ठीक है। नेक्स्ट, सम हैव फ्लैजला और सीलिया फॉर लोकोमोशन, राइट। प्रोटिस्ट्स reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल फ्यूजन से, यानी कि इनके सेल फ्यूज करके न्यू सेल बनाते हैं और साथ ही साथ इनमें जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि यहाँ पर इनका जो रिप्रोडक्शन होता होगा, तो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर दोनों ही मोड होता है, यानी कि ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल एंड साथ ही साथ ये सेक्सुअल मोड भी रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इनमें अगर देखा जाए तो ये दोनों ही तरह का इनमें मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस प्रेजेंट होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ प्रेजेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस करेंगे तभी तो इनमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, तभी तो इनमें जाइगोट गैमेट्स फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाएंगे, तो मियोसिस भी होता है एंड सेल को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए माइटोसिस भी होता है, ठीक है। तो ये इतने तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली तो करते ही हैं, साथ ही साथ सेक्सुअली सेल फ्यूजन एंड गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन से करते हैं। स्टूडेंट्स, these organisms are also very important because they are a we can say that they are great producers in ocean, right?
They are great producers in ocean. They perform photosynthesis at large scale in ocean, and they produce oxygen gas as well as glucose molecule for the welfare of all organisms, right? Now next we move, we have concluded all Protista according to NCERT. What the characters are? They have unicellular and eukaryotic body. They have nucleus present. They contain membrane bound cell organelles. They perform meiosis as well as mitosis. They reproduce asexually and sexually. They have flagella and cilia for locomotion, and flagella is especially made up of tubulin protein. We concluded these things here. Now we move towards chrysophytes. What are chrysophytes? Right? Chrysophytes. What is this? This group include diatoms and golden algae, also known as desmites. They are found in fresh water as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in water current. They are called planktons. तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो फ्लैजला और सीलिया से मूव नहीं करते. दे पैसिवली फ्लोट इन वाटर, यानी कि पानी की धार के साथ ये बहते रहते हैं, तो इनको प्लैंक्टन्स ही कहा जाता है. ठीक है. इस क्राइसोफाइट में मेनली कौन कौन होते हैं? तो डाई एटम्स, नाम से ही लग रहा है, जिसमें 2 एटम होगा. डाई एटम यानी कि एटम 2 नहीं होगा, ये बने, इनका बॉडी ऐसा बना होता है कि ये लगता है जैसे कि 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़ गया है. बिल्कुल सेम टू सेम ये 2 तरफ से दिखते हैं. एंड उसके साथ साथ इनमें गोल्डन अल्गी डिस्माइट्स भी प्रेजेंट होते हैं. दे मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. दे परफॉर्म, एज प्रीवियसली आई सेड, they perform photosynthesis at large scale. In diatoms, the cell wall form 2 thin overlapping shells. Diatoms में क्या होता है? 2 अलग अलग overlapping cells से ये बने होते हैं, which fit together as in a soap box. सोप बॉक्स देखा है कभी? साबुन जिसमें रखते हैं अंदर में, कभी कभार आपने देखा होगा साबुन रखने वाला सोप बॉक्स. बिल्कुल उसी की तरह इनका स्ट्रक्चर दिखता है. अब आपने खुद नहीं देखा होगा, अपनी मम्मी से पूछिएगा, या पुराने समय में वो मिलता था, इस तरह से पैक हो जाता था उसमें. ठीक है. तो उसी तरह से ये एटम्स दिखते हैं जैसे कि पैक हो गए हों. ठीक है. या फिर ये पेट्री डिशेस की तरह दिखते हैं. पेट्री डिशेस कभी देखा है? अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये सोप बॉक्स की तरह दिखेंगे. अगर ये स्फेरिकल शेप में है या सर्कुलर है तो ये पेट्री डिशेस की तरह दिखेंगे. आपने बायो के लेबोरेटरी में देखा होगा, पतला पतला ट्रांसपेरेंट प्लेट टाइप का होता है जिसमें एक कवर भी होता है ऊपर से, उसमें हम कुछ भी मटेरियल रखते हैं, तो ये पेट्री डिशेस कहलाता है. तो वो पेट्री डिशेस की तरह भी पैक हो जाते हैं या फिर वो सोप बॉक्स की तरह पैक हो जाते हैं. The walls are embedded with silica. Chrysophytes की स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, सिलिका. ठीक है. सिलिका वर्ड मत भूलिएगा, जब भी क्राइसोफाइट आएगा तो इनके साथ सिलिका टर्म ही आएगा. ठीक है. सिलिका, एक तो ये सोप बॉक्स की तरह दिखते हैं और दूसरा इनके ऊपर सिलिका प्रेजेंट होता है. सिलिका, एंड thus the walls are indestructible. ये टूट नहीं सकते, काफी मजबूत होते हैं सिलिका के कारण. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. ये जो डायटम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा, जब ये मर जाते हैं, जब ये डेड एंड डीके हो जाते हैं, तो जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ जैसा उठ जाता है, जिसको हम कहते हैं डायटम सॉइल या फिर सिलिका अर्थ. राइट. डायटोमेशियस अर्थ कहलाता है ये. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years, बहुत सालों के बाद जब उसको देखा जाता है जैसे कि पहाड़ खड़ा हो सिलिका का, तो उसका नाम दिया गया है वहाँ पर डायटोमेशियस अर्थ. Being gritty, this soil is used in. अब किस चीज़ में इनका यूज़ किया जाता है? बहुत कीमती होता है ये डायटोमेशियस अर्थ.
इनका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में, ठीक है। डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, चीफ प्रोड्यूसर्स, राइट। इस पॉइंट को नोटिस कर लेंगे कि ये जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, नीट में। मैं बार बार नीट वर्ड यूज कर रही हूँ इसलिए ताकि आप समझें कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लेना है एट अ टाइम, राइट। तो आपके पास एक छोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा और आपके दिमाग में भी एक नोट्स तैयार होता चलेगा, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो मेरी आवाज़ से, मेरी वॉइस से ही आपको याद आ जाए कि हाँ मैम ने ये बात बताई थी, ठीक है। तो क्या बताई थी मैम ने कि डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, राइट। दे आर मेड अप ऑफ सिलिका वॉल, देयर सेल वॉल is indestructible because of the presence of hard silica, right. Next we are moving towards dianoflagellates, right. Dianoflagellates, these are one of the most important second member of this family. तो ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैराइन मीन्स ये ओशन में पाए जाते हैं, मैराइन मीन्स ओशन, ओशन को मैराइन लाइफ कहा जाता है, मैराइन वाटर, क्योंकि वो सॉल्टी होता है तो उसे हम नमकीन पानी या सी वाटर या ओशन वाटर कहते हैं। तो मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये भी काफ़ी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो इनमें क्या खासियत होती है, इनमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही, साथ ही साथ ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर येलो भी दिखता है, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनके जो सेल वॉल होते हैं वहाँ पर सेल्यूलोजिक प्लेट भी प्रेजेंट होता है आउटसाइड से। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला, इनमें एक खासियत होती है कि इनके पास 2 फ्लैजला होता है, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। इस तरह से इनके फ्लैजला होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल होगा तो एक वर्टिकल फ्लैजला होगा, और वहाँ पे 2 ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप और दूसरा वर्टिकल ग्रुप होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव फ्लैजला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। फरो वी कैन से दैट ग्रुप्स, राइट। वेरी ऑफन, अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट इनके बारे में बताया जा रहा है बात, वो ये है कि ये रेड टाइड क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में लाल रंग का पूरा तूफान उठ गया हो, रेड टाइड। कैसे, तो वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, राइट। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा लगता है कि जो समुद्र है पूरा रेड रेड उठ गया हो, क्योंकि इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखा जाता है। डायनोफ्लैजेलेट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस वजह से इनका जो ये रेड टाइड क्रिएट करते हैं। रेड टाइड अक्सर एग्जाम में पूछता है, रेड टाइड तो कौन कॉज करता है। स्पेशल डायनोफ्लैजेलेट नाम है गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स, ठीक है, गोनियोलैक्स है इनका नाम। ये काफ़ी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रेड टाइड क्रिएट करते हैं समुद्र में, जिसकी वजह से ऐसा लगता है मानो कि तूफान बिल्कुल उठा हुआ हो वहाँ पे, रेड कलर का। तो ये डायनोफ्लैजेलेट्स हैं स्टूडेंट, स्पेशली गोनियोलैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये काफ़ी
हेवी टाइप का टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, जो कि आप उसके अगर जस्ट उसके टच में आएंगे उस टॉक्सिन के, तो वो आपको पैरालाइज कर सकता है। ये स्पेशल इनकी खासियत है कि इनके अंदर टॉक्सिन्स भरे होते हैं, और ये जब ऑर्गेनिज्म को देखते हैं या उनके टच में कोई आता है तो ये वो टॉक्सिन को भी रिलीज कर देते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज, यानी कि इनके टॉक्सिन्स की वजह से फिशेस की डेथ भी हो जाती है। सेकेंड इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट, third one is euglenoids, right? Euglenoids, euglena, very beautiful unicellular eukaryote, you can say that, because this organism has a special property, dual property, that it can perform photosynthesis as well as it can switch itself towards heterotrophic mode of nutrition. In one organism, two types of metabolism is found, that is, it can perform photosynthesis and become autotrophic, and when the sunlight is not present, it switches itself towards heterotrophic mode of nutrition. This is called euglena. हमेशा याद रखिएगा, यही वो स्पेशल ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, जो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पानी रुका रहेगा वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाएंगे। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which make their body flexible. ठीक है, इनके पास स्टूडेंट सेल वॉल नहीं होता, इनके अंदर बस एक ऊपर से एक प्रोटीन का कवर होता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। इस पेलिकल के प्रेजेंस की वजह से यूग्लिना की बॉडी जो होती है स्टूडेंट, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड अनदर वन इज लॉन्ग, यानी कि इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है, एक लंबा और एक छोटा। दो दे आर photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by pretending on other Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. यानी कि ये फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं स्टूडेंट, लेकिन जब सनलाइट कम प्रेजेंट होता है या फिर सनलाइट नहीं अवेलेबल होता है, कहीं गहराई में जब ये होते हैं वहाँ पे सनलाइट नहीं अवेलेबल होता है, तो एट दैट टाइम दे स्विच टूवर्ड्स heterotrophic mode of nutrition by obtaining food from smaller organisms, right? Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. यहाँ पे भी खास बात है कि इनमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो हायर प्लांट्स में होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर इस मेंबर का नाम है यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? ये चौथा टाइप का मेंबर है प्रोटिस्टा का, जिस ग्रुप में किस तरह के एनिमल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हम लोग देखेंगे। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक मीन्स those organisms which obtain their food from dead and decaying matter, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ले है ना, ऑब्टेन कर ले, उसे सैप्रोट्रॉफिक कहा जाता है। और वो अगर प्लांट वेराइटी है वो ऑर्गेनिज्म, तो वो सैप्रोफाइटिक कहलाता है, और वो अगर एनिमल है तो वो सैप्रोजोइक कहलाता है।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉफिक है। अगर वो प्लांट परफॉर्म कर रहा है तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, अगर वो एनिमल है तो सेप्रोजोइक कहलाएगा। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, यानी कि ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जहाँ पे ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis absent, right? Next, they are saprotrophic. They obtain food from dead and decaying matter, right? The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. इनकी बॉडी कैसे मूव करती है? ये सड़े गले पेड़ पौधों पे पाए जाते हैं, तो ये जैसे जैसे भोजन लेते रहते हैं उस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। उन सड़े गले चीज़ों से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे ये उसी के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल खींच लेते हैं, कहाँ से? तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस, अगर कंडीशन काफ़ी सुटेबल है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये अगर कंडीशन सुटेबल है, बहुत इन्वायरमेंट इनके लिए फेवरेबल है, तो एट दैट टाइम ये क्या करते हैं? अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट कर जाते हैं, एग्रीगेट मतलब जुड़ जाना, जुड़ना, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो याद रखिएगा, स्लाइम मोल्ड्स के एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहा जाता है, ठीक है। एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। इनका जो ग्रुप होगा वो प्लाज्मोडियम कहलाएगा और ये फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रुप बनाते हैं, which may grow and spread over several feet। ये काफ़ी ऊंचाई तक या लंबाई तक, चौड़ाई तक अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम। इनके गुच्छे को प्लाज्मोडियम कहा जाता है। प्लाज्मोडियम अनदर ऑर्गेनिज्म भी है, लेकिन यहाँ पे स्लाइम मोल्ड के ग्रुप को भी प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन में था, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं? तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, प्लाज्मोडियम जो है अपना रूप बदल लेता है, अलग हो जाता है, एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये अपना रूप बदल लेता है और यह फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, राइट। तो ये क्या करते हैं? जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, एट दैट टाइम दे मेक एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर सेवरल फीट्स विच इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दिस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट इटसेल्फ एंड फॉर्म fruiting bodies. Fruiting bodies means to say they want to reproduce, right? They want to bear spores for reproduction, right? तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं अपने बॉडीज पे और ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं उसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप्स पे, राइट। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, इनके जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल होता है, वॉल है ना, यानी कि उनका आउटर मोस्ट कवरिंग भी उनके पास होता है वहां पर। एंड दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि ये कठोर हो जाते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं, जल्दी खत्म नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, काफ़ी ज़्यादा एडवर्स विपरीत कंडीशन में भी ये जो ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड्स वो सर्वाइव करता है। इनके स्पोर्स
जो इनके स्पोर्स होते हैं वो ट्रूली कवर्ड होते हैं एक लेयर से, और इस वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में सालों तक जीवित रहते हैं। ये जल्दी खत्म नहीं होते, रेसिस्टेंट होते हैं, किसी भी चीज़ से मरेंगे नहीं, ये बहुत दिनों तक सर्वाइव करेंगे। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और हवाओं के द्वारा इनके जो स्पोर्स होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, राइट। The next, which is last topic of this Protista kingdom, is Protozoa. Protozoa, right? Protozoa, I think we have already know about this topic Protozoa from 7th 8th class, because Protozoa, one member of Protozoa is very familiar to us, that is malaria causing organism, right? Next we will discuss about it. The malaria causing organism is very much familiar with us, and second, amoeba, we know amoeba very well, right? All protozoans are heterotrophs, they never perform photosynthesis, they are heterotrophic in nature. ठीक है, ये कभी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे के बनाए हुए भोजन को लेते हैं। They are heterotrophs, right? All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. ये जनरली प्रीडेटर की तरह रहेंगे या फिर पैरासाइट की तरह रहेंगे। प्रीडेटर मीन्स शिकारी, यानी कि ये किसी को लेके अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, या फिर ये उसके साथ चिपके हुए रहेंगे पैरासाइट की तरह। जब तक वो लिविंग रहेगा ये तब तक उसके पास रहेंगे, चिपके अंदर या बाहर रहेंगे उसके बॉडी पे, और फूड ऑब्टेन करते रहेंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, इसीलिए इनका नाम है प्रोटोजोअन्स। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, फर्स्ट, एंड जोअन मीन्स एनिमल। Protozoa belongs to first animal group, right? It is the most lower group of animal, right? But now when R.H. Whittaker have classified all organisms into 5 kingdom, he taken this protozoa from animal kingdom to the Protista, right? He placed it very well at appropriate position because they are unicellular and eukaryotic also, right? All protozoans are heterotrophs and they live as predators and parasites. ये दूसरे से ही भोजन लेते हैं हर हाल में, चाहे ये शिकारी के रूप में हो, चाहे ये पैरासाइटिक के फॉर्म में हो। They are believed to primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoa. ये जो प्रोटोजोआ हैं इनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, प्रोटो एंड जोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोअन मीन्स एनिमल, दैट इज इट बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम, राइट। प्रोटोजोआ जो है वो प्रिमिटिव एनिमल टाइप का ग्रुप का मेंबर हो गया। स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमालिया किंगडम में लोअर लेवल पे था, जिसे आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं एनिमालिया से। क्या सिमिलैरिटीज़ होती है? तो इनमें इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ये कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। नेवर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नेवर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते बिकॉज दे लैक एनी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट। तो ये हेटेरोट्रॉपिक हैं और फोटोसिंथेटिक भी हैं। दे ऑल्सो लैक सेल वॉल, they lack cell wall, the outermost cover is cell membrane, right?
तो ये मोस्टली एनिमल किंगडम का ही लोअर लेवल का मेंबर्स है जो यूनिसेल्युलर होता था, जो यूनिसेल्युलर होते थे, और इस वजह से इनको एनिमालिया में पहले डाला गया था, बट आर एच व्हिटेकर ने इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स all protozoans are heterotrophs, have live as predators और parasite, ये या तो predator की तरह रहेंगे या फिर parasite. They are believed to be primitive relatives of animal, ये animal के ही relative कहे जा सकते हैं. इनके 4 major classes हैं जो है amoeboid protozoa, flagellated protozoa, ciliated protozoa and sporozoan protozoa, right. Now we first discuss amoeboid protozoa according to NCERT. ठीक है, these organisms live in fresh water, sea water और moist soil. यानी कि ये जो होगा वो fresh water में भी होगा और marine में भी होगा. ठीक है, तो fresh water and marine habitat both. मैराइन में भी मिलेगा, साथ ही साथ ये सॉइल में भी पाए जाएंगे. ठीक है, सॉइल में भी पाए जाएंगे. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फुट एज इन अमीबा. तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो स्मॉल इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट वो इस तरह का होगा, और जो इनका ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्यूडोपोडिया कहलाता है. Pseudopodia means false foot. Pseudo means false and podia means foot. तो इनका जो फुट होता है वो फॉल्स फुट होता है, जो इनको फूड की तरफ मूव करने के लिए, अगर यहाँ पे फूड है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को यहाँ तक ले आएंगे और इस तरह से करके ये अपने फूड को कैप्चर करके अपने अंदर ले लेंगे. ठीक है, with the help of food vacuoles, right. We will discuss it further in any of the chapter related to this, right. तो इनके पास खास पैर होता है जिनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जो अपना शेप हमेशा बदलता रहता है. यही स्यूडोपोडिया इनको लूकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं. ये अमीबा में ही पाया जाता है. मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, इनमें भी सिलिका सेल्स होते हैं. जो इनका मैराइन फॉर्म है, यानी कि मैराइन, हम कह सकते हैं कि मैराइन एमीबॉइड प्रोटोजोआ, मैराइन एमीबॉइड प्रोटोजोआ शोज सिलिका सेल. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, सिलिका सेल का होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इट टेक्स बायोलॉजी टू द इकोनॉमी, राइट. इकोनॉमी बढ़ जाएगी उस कंट्री की जिसके जिसके शीशोर के पास ये ऑर्गेनिज्म अगर डायटोमेशियस अर्थ या इस तरह का सिलिका डिपॉजिट कर दें तो उस कंट्री की इकोनॉमी रिच हो जाएगी, बिकॉज सिलिका काफ़ी ज़्यादा कैश कह सकते हैं हम, हाई कैश होता है उसका. ठीक है, तो वो हो गया. नेक्स्ट है सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स. इनमें जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं, वो बीमारी कॉज करते हैं, राइट. नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ नेम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें फ्लैजला श्योर होगा. ठीक है, श्योरली इनमें फ्लैजला होगा. The members of this group are either free living और parasitic. ये फ्री भी मूव कर सकते हैं या फिर ये किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रह के भी अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. They have flagella surely because नाम ही इनका है flagellated, that's why they contain flagella. The parasitic forms causes diseases such as sleeping sickness. ये जो आपका ट्रिपैनोसोमा है ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस. नोट कर लीजिएगा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है वो यही प्रोटोजोआ कॉज करता है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा, जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है, एक तरह का पैरासाइट. नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड.
इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा, मतलब जो फ्लैजला से छोटा होता है बट नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखिएगा इनका स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ कैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सीलिया उनमें दिखता है। ठीक है, तो दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, यानी कि इनमें छोटे छोटे सीलिया बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये हमेशा मूव करते रहते हैं। राइट, दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनमें एक कैविटी होती है जिसे गुलेट भी कहा जाता है, जो ओपन होती है आउटसाइड, मतलब बॉडी से बाहर की तरफ वो कैविटी खुली हुई होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, बिल्कुल सीलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करेगा, causes the water laden with food to be steered into the gullet। अगर कहीं पे फूड है तो ये उसी डायरेक्शन में इनका सारा सीलिया मूव करेगा और जो फूड होगा उसको ये अपने गुलेट में किसी भी तरह से घुसा लेंगे, अंदर की तरफ ले लेंगे और ये उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी ले लेंगे, बिकॉज दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। राइट, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं पैरामीशियम, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो इनमें क्या खासियत है, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, सीलिया प्रेजेंट है, नंबर न्यूमरस एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके पास एक गुलेट होता है जो इनको फूड लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोअन्स, जो लास्ट है प्रोटोजोआ मेंबर का, स्पोरोजोअन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये हार्मफुल हो सकते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे मेंबर्स होंगे जो स्पोर प्रोड्यूस करते होंगे और उनका वो स्पोर जो होगा वो डेंजरस हो सकता है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, इनका जो सबसे खतरनाक है मेंबर वो है प्लाज्मोडियम। नोटोरियस मीन्स नटखट, जो सबसे नटखट है इनके ग्रुप का मेंबर वो है प्लाज्मोडियम। मैलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया विच हैज़ अ staggering effect on human population. Oh my god, malaria is very dangerous disease to human because it causes very great weakness in the body and high fever also. Malaria is caused by plasmodium, which is the member of sporozoan protozoa which belongs to the protista kingdom. Now we are concluding this kingdom, protista, which contains all unicellular eukaryotic organisms. The members are this kingdom contains lots of members which we have discussed very easily. Students always go through easy way, right? Bio is very interesting, simple, and you can say that it is simplest subject of the world, right? You can understand it very well because examples are everywhere. We can learn by lots of example this subject, right? So don't get panic anytime about the subject because this subject is very easy. You can learn it by opening just your eyes, right? तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। चलिए बाय, we will meet with next kingdom fungi in the next lecture. Take care, stay healthy.